मुझे ये कहना है कि आईटी की जब शुरुआत हुई थी 25 साल एवरीबॉडी आई मीटिंग नाउ सेइंग ओ माय गॉड 25 इयर्स लगता नहीं था कि 25 साल निकल गए हैं बट आई थिंक 25 इयर्स इज a quarter of a lifetime literally for all of us here and you guys have all supported us so much. I am very happy to say that we have been associated with Star Plus. We've done brilliantly. We started 25 years ago with them, continued I think for 6-7 years we were with you, and now once again we are with Star Plus. I am not bragging, but we are the highest rated awards in the country, and we have beaten any other award you can. And it's because we've got this fantastic community of television stars, and the world loves them. Everyone wants to see them, what they're doing. They treat them, and they feel they're one of their own. And that is the reason IT is where it is today. Even in the last 5 years, I think we have beaten most of the programs across GC networks and channels as the highest rated program on Indian television. Sorry. Okay, guys, Star Plus is going to talk about, so I will now zip my lips. Okay, and I do want to say a lot. I have a very bad throat, so I'm an excuse for that. It feels fantastic. I have not been associated for the last 25 years. We had been having an association for 2 years, but this 2 years seems like awesome, mind blowing, and what Shashi and Anu had created together, I think is stupendous. Some stuff that I want to rattle off. Is the best award show, is the best event that India witnesses. That's not an opinion. I'll back it up with some data. The first point is that every 31st night for the last 2 years, 40 million Indians ushers in the new year with ITA and Star Plus. Wow. That's 4 crore people sitting across homes all over India, ushering in New Year, created, which is we should be extremely proud of. 25 years is a fantastic milestone, and to wish him for another big 25 to come. Absolutely. Can we have a big round of applause for Shimoto? अंकिता, दीपक, लिंडा, स्टार से आए हुए बाकी सभी लोग, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे कलीग्स, जो भाई मेरा फ़ोन ले लो नहीं बजता है, रोहित, महिमा, जबकि वो टेलीविज़न में नहीं थी, वो फिल्मों में थी, लेकिन उनका साथ जो है हमारे साथ हमेशा रहा है, उनका मार्गदर्शन भी रहा है, और जब कभी भी आईटी के अंदर कोई भी भूमिका निभानी होती है तो महिमा मेरे साथ हमेशा खड़ी होती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महिमा, थैंक यू वेरी मच। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये शेर जो है आई थिंक हमारी जर्नी का बिल्कुल सही। I just want to say one thing. हमारे top 10 जो reels of videos of clips जो है Facebook पे, they have a total view of over 2.8 billion views in 1 year, which is there totally. So 500 million views, an extraordinary 9.4 million interactions. ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। सो वो क्यों हुआ? क्योंकि आईटी अवार्ड एक ऐसा इकलौता अवार्ड है जिसकी पॉपुलर वोटिंग जो है, बिग बॉस जो है बहुत बड़ा, और कहते थे कि ये जितने बड़े बड़े स्टार हैं, शाहरुख और ये वो, उनके सामने तुम्हारे चेहरे जो हैं उनको कौन देखेगा, कौन क्या करेंगे ये लोग। और ये कहीं शंका हमें भी थी क्योंकि टेलीविज़न उस टाइम नया नया शुरू हुआ था, हम नहीं जानते थे कि ये बेहतरीन डांसर भी हैं, ये बेहतरीन एक्टर तो थे ही, ये गाने भी गा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे ये ख्याल था कि करेंगे क्या, अगर हमने अवार्ड शो शुरू किया तो एंटरटेनमेंट हमारे में होगा क्या, क्योंकि यहाँ तो
शाहरुख डांस करते थे, फलाना डांस करते थे, ये करते थे, और फिल्म स्टार्स थे, हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे याद है कि पहले साल हमने कुछ एक प्लेटफॉर्म दे रहा था, उनको शायद छोटा दिखा था कि ये इनके सामने बहुत छोटे हैं। और वो जो हमारी प्रतिज्ञा थी, जो हमारा विश्वास था, वो आज कामयाब हुआ है। क्योंकि जैसा कि शुमांतु जी ने बताया कि इतने सारे लोग वेट करते हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मनीष आ जाओ, लेट हो तुम आप। तो वो विश्वास आज मुझे बहुत खुशी दे रहा है। उस वक्त शायद लोग शक करते थे, लेकिन अब वो इस बात की सराहना करते हैं कि यही एक लौता है प्लेटफॉर्म है जो अभी तक जाता नहीं है तो लोग सूंघ लेते हैं। ये जो 1.5 करोड़ लोग वोट देते हैं, उन्हें कहीं विश्वास है कि जो उनको लोग पसंद कर जो एक्टर वो पसंद करते हैं या जो उनकी चाहत है, कहीं रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। और इसके लिए मैं उन तमाम ज्यूरी मेंबर्स का और चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सालों साल आके घंटों, पर्सनैलिटी अच्छी है, बोलते जुबान अच्छी थी, इनकी हिंदी भी अच्छी बोल रहे थे। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर मैं करूँगा, आपके साथ कुछ करूँगा ज़रूर। और हमेशा चैनल का ये रहता है कि पॉपुलर फेसेस होने चाहिए, पॉपुलर आदमी होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सर मुझे एंकरिंग का मौका मिलेगा। मैंने कहा कोशिश करता हूँ। तो उसी साल मैंने इनका आराम रिकमेंड किया कि रेड कारपेट पे ले। पहले मैंने कहा इनको ले लेते हैं, तो उन्होंने नहीं, हमें बड़े लोग चाहिए, बड़े फेस होना चाहिए, बड़ा शो है। तो मैंने कहा नहीं अच्छा है, ये करेगा, अच्छा करेगा। एनीवे रेड कारपेट पे इनको चांस मिला। मैंने इनको कहा कि मनीष आप रेड कारपेट करो और इस पे छा जाओ, और फिर देखो मैं तुमको अगले साल क्या करता हूँ। तो ही बिलीव्ड इन मी, he said okay, he believed in me and he said sir I will do it। इसका भी एटीट्यूड करेक्ट है, he says I will do it। इसने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी इसको वक्त लगा, लेकिन मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद कितने 15 साल से कर रहे हो यार, कितने कब से कर रहे हो मुझे याद भी नहीं। हमेशा ऐसा लगता है मैंने पहले किया है तुमको कि जब भी होता है तो मनीष कहाँ है, मैं इससे नाराज भी हो जाता हूँ, झगड़ा भी कर लेता हूँ इससे, ये नहीं होता तो। और मैंने इसको एक मुझे लगे फुटबॉल खेलने आएंगे जर्सी बने। थैंक यू सो मच शशि जी फॉर द काइंड वर्ड्स। और हाँ ये बात है, जब मुझे काम नहीं मिल रहा था, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था कि चलो ये भी कर सकता है, शशि जी ने डेफिनेटली मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था। आई स्टिल रिमेंबर द शोज, आई स्टिल रिमेंबर रेड कार्पेट से शुरुआत करी बिकॉज मेन स्टेज पे ऑब्वियसली पॉपुलर फेसेस चाहिए थे। बट मुझे ये नहीं बात समझ आई, जब आप ही पॉपुलर नहीं बनाओगे तो फेस पॉपुलर बनेगा कैसे। तो आई थिंक थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट, बिकॉज आई थिंक टैलेंट मेरे में नहीं, बहुत चलिए काम भी मिल जाता है, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन रिकग्निशन ना मिले तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट अधूरा फील करता है फॉर श्योर। सो आई थिंक ITA हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रिकग्निशंस एज फार एज आई एम हियर इन होस्टिंग। आई थिंक मुझे याद है 10 अवार्ड्स मैं आपके जीत चुका हूँ सर। तो अब 11वें की तैयारी कर रहा हूँ। तो मतलब वो होता है ना कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कभी हम ग्रीडी हंग्री आर्टिस्ट होते हैं, हमारा पेट नहीं भरता कि चलो 10 मिल गए, बंदा कहता है हो गया, हम लोग वही कहते हैं नहीं यार एक और आ जाए यार। सो आई थिंक बट वही एक आर्टिस्ट की पहचान भी है, बिकॉज वो भूख खत्म हो जाएगी तो आर्टिस्ट खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एंड हम लोग वहाँ पे खूब हंगामा करेंगे। एज वी सेड इट्स अ फैमिली, इट्स वी नेवर टेक इट लाइक अ शो कि एक शो है जहाँ पे एक स्क्रिप्ट आएगी, हम पढ़ेंगे और चले जाएंगे। आई थिंक हमें बहुत से आइडियाज़ आते हैं और हम लोग कॉल करते रहते हैं, अच्छा सर ये कर लेंगे, भरत जी एक ये आइडिया आया ये कर लेंगे, you know, जो भी। I feel so at home with Aida. I'm also going to sit and watch. I guess it comes from television because Aida is all about television. That's how it started. Congratulations. उस टाइम पे I think कोई और था ही नहीं जो television industry को वो recognition देता था. I'm so happy you've come such a long way. You included films. हाँ मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ और मैंने मनीष आपकी तरह होस्ट भी किया है, बट आज तक मुझे नॉमिनेशन भी नहीं मिला। तो ये इस बात को तय करता है कि ये लोग कितने ट्रांसपेरेंट हैं। हर अवार्ड में पहुंच जाती हूँ, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहुंच गए।
मेरी नीयत ठीक नहीं है बट इनकी नीयत ठीक है. So that speaks volumes and कुछ साल पहले obviously OTT ने इतनी धूम मचाई, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए. रोहित भाई शुरू करें. मैं महिमा जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ. बहुत दिन से मेरे दिल में आ रही थी, बुरा मत मानिएगा. ओबला डी, ओबला डा, ओबला डू, आई लव यू. अच्छा आई लव यू नहीं बोला लास्ट का. अच्छा अच्छा. हम लोग बात कर रहे थे, महिमा जब यहाँ बैठ के बात कर रही थी. वार्म वेलकम टू द मेंबर्स ऑफ द प्रेस. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द आइडिया, बिकॉज आई कैन गो ऑन फॉर महिमा चौधरी. बहरहाल 25 इयर्स बहुत ही लंबी जर्नी होती है किसी भी चीज़ के लिए. मुझे आज भी याद है जब पहला अवार्ड फंक्शन हुआ था 2000 में. रेनेसां पवई करके एक होटल है और वहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल में ये अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था. स्क्रिप्ट लास्ट मिनट पे आती थी, हम लोग पढ़ रहे थे, बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और शो हुआ. खुशी इस बात की है कि पहला जो फर्स्ट आईटी अवार्ड्स हुआ था वो मैंने होस्ट किया था और अब मनीष के साथ 25वां होस्ट करूंगा. मनीष के लिए जो मैं बोलता हूँ वो एक बार इनके लिए ताली बजाइए जिन्होंने आके रेड कारपेट के साथ साथ सारे कारपेट ले लिए. और मैंने अभी मुझे पता चला है कि ये शशि जी ये क्या है यार, आई वॉज योर फेवरेट, हाउ कुड ही. के बाद हमारा नाम घर घर तक पहुंचा. मुझे याद है कि रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो अनाउंस करते थे. एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन वी हैड एक्सपीरियंस दैट फीलिंग दैट हाई. आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू कम बैक अगेन, एटलीस्ट फॉर समवन लाइक मी who had spent so many years before that. And yeah, Mahima, you're right. It's really transparent. I was a big star on television. I was very close to Ani and Shashu. Shashi ji को मैं अभी भी शशि जी बोलता हूँ. लेकिन एक ही बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है मुझे 25 साल में. And I think I was very deserving. Please tell me आपका इस milestone year से related क्या यादें हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? Sure. First of all, good evening everyone, and thank you Anuji, Shashi ji for inviting me for this 25th ITA press conference. My God, it's very nostalgic moment for me because ITA and Star Plus. I started my career with Star Plus, and जो first character था कस्तूरी, उसके लिए मैं debut के लिए nominate हुई थी at ITA. So दोनों ही साथ में हैं. So I'm feeling very nostalgic today. और जहाँ तक ITA मेरी फैमिली है और इसका सवाल है, तो ये फैमिली, ये जो रिश्ता है ये बहुत मजबूत हुआ. तो एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ. इंदौर में आईटा अवार्ड्स होने जा रहा था और मैं चूँकि इंदौर से हूँ, तो जब आईटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ कई सारे टीवी एक्टर्स को, प्रेस को, सबको पहुँचना था. लेकिन उस दिन मुंबई में इतना भयंकर ट्रैफिक जैम था. गोरेगांव से लेके सैंटा क्रूज का पूरा जैम था. कोई भी एक्टर कोई भी नहीं पहुँच पाया, बट मैं पहुँच गई थी क्योंकि मेरे कैब वाले ने मुझे एक बाइक वाले को रुका के बोला कि आप प्लीज़ मैम को एयरपोर्ट ले जाइए, इनका बहुत अर्जेंट कुछ काम है. और ये मेरी शुरू से आदत है, अगर मैं किसी चीज़ को शुरू करती हूँ ना, मैं उसको डेस्टिनेशन तक ज़रूर लेके जाती हूँ. सो उस दिन फिर मैंने बाइक पर मतलब उससे लिफ्ट ली और थैंकफुली वो जो बाइक पे जो थे जेंटलमैन, वो एयरपोर्ट पे ही काम करने वाले थे. अब आप सहयोग देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि वो सीधे मुझे एयरपोर्ट लेके गए और बिल्कुल जब इंडिगो का डोर बंद हो रहा था और मैं पहुंची और आईटा परफॉर्मेंस, मतलब आईटा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ अकेली एक्टर पहुंची थी और तब शशि जी ने कहा था हमारी शेरनी आ गई. सो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. सो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको और मैं चाहती हूँ कि मैं 50th जो हमारा आईटा अवार्ड्स होंगे उसमें भी मैं यहाँ रहूँगी. आई विल कीप एंटरटेनिंग एंड आई प्रॉमिस यू. और जहाँ तक आप दोनों का सवाल है, अगर होस्टिंग में कोई ज़रूरत पड़े फीमेल होस्ट की तो प्लीज़ कंसीडर मनीष, शशि जी. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड अनुजी, शशि जी सही पकड़े हैं. It's also part of the family. Whenever there is an opportunity, we always think of him. And yes, so defining moment IT के अंदर तो हर साल एक नया मोमेंट, एक नया माइलस्टोन हमारे सामने होता है और हर साल